Chapter 4, Introduction to MS Access 2016, and the topics which we will discuss in this chapter are database, setting field size properties, advantages of databases, setting a default value, MS Access objects, setting the fields format, starting MS Access 2016, creating validation rules, components of the Access window, saving and closing the table, field data types and properties, adding records or data in table, database views in MS Access, editing records in a table, creating a table in design view, deleting records in a table, setting a primary key and sorting records in a table. तो Microsoft Access एक powerful database software है जो allow करता है हमें to create, manage and process data in the form of a table. Now हर एक जो specific piece of information है in a table उसे हम value बोलते हैं. तो a value is located at the intersection of row and column. जब भी हम सेव करते हैं अपने डेटाबेस को in Microsoft Access, it is saved with .accdb extension. डेटाबेसेस क्या होते हैं? डेटाबेस एक कलेक्शन होता है ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन अ मैनर जो अलाउ करता है एक्सेस, रिट्रीवल एंड यूज ऑफ अ डेटा. नाउ डेटाबेस सॉफ्टवेयर आल्सो कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS जो अलाउ करते हैं हमें टू क्रिएट एंड कंप्यूटराइज डेटाबेस, add changes and delete data, sort and retrieve data from the database, and create forms and reports using the data in a database. Now, DBMS can be based on different data models. DBMS based on relational data models store करते हैं data in the form of tables and is called Relational Database Management System, which is RDBMS. So, in RDBMS, data को store किया जाता है in number of separate but linked tables. Example of RDBMS are Microsoft Access, Microsoft SQL, and Oracle. What are the advantages of databases? Some of the advantages of storing data in database are compared to files as listed below. Reduce data redundancy, यानी कि जो duplication होता है डेटा का वो रेफर करता है डेटा redundancy को, and in contrast to non-database systems which maintain multiple copies of same data at different locations, DBMS store करता है डेटा को at a central place. The user is not required to maintain multiple copies of the same data, thus RDBMS prevent करता है duplication. Reduce update on errors and increase consistency. मतलब when the data is stored at multiple locations, तो वहाँ पे chances होते हैं modifications के they are not carried out at the entire place. Multiple mismatching copies जो होते हैं same data के उन्हें हम बोलते हैं data inconsistency. DBMS ensure करता है कि data consistency हो by storing data at one place and ensuring that there is no duplication of data. Improved data access to user मतलब DBMS store करता है हमारे डेटा को at a centralized location and facilitate करता है sharing of data among multiple users according to their requirements. For example, users from all over the country access करते हैं database for booking railway tickets. Improved data security यानी कि one of the most important advantage जो है DBMS का वो है data security. In DBMS user का जो ID है it can be created with the various level of security. यूजर्स के पास लिमिटेड राइट्स होते हैं एंड परमिशंस होते हैं. ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स जो है वो एक्सेस कर सकते हैं डेटा को एंड सम में हैव द प्रिविलेज ऑफ चेंजिंग द डेटा व्हाइल अदर्स कैन ओनली व्यू द डेटा. फिर आता है हमारे पास मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स. तो जो DBMS है वो इंश्योर करता है कि जो स्टोर्ड डेटा है वो फॉलो करेगा ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स एंड नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. दिस इंश्योर ग्रेटर डेटा इंटीग्रिटी एंड ऑल्सो एड्स इन शेयरिंग डेटा बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स. MS Access objects. तो database in Access are composed of four main objects: tables, queries, forms and reports. तो tables क्या होते हैं? Table एक database object है जो store करता है डेटा को in the form of records, rows and field which is columns. तो all the other elements of database are created based on the data stored in the table. So जो basic component होते हैं table के they are column and row. Now we have queries. तो एक डेटाबेस स्टोर करता है वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा बट क्वेरीज हेल्प करते हैं हमें टू रिट्रीव द फिल्टर्ड डेटा बेस्ड अपॉन सम कंडीशंस. क्वेरीज आर आल्सो यूज्ड टू परफॉर्म एक्शंस जैसे डिलीट, अपडेट एटसेट्रा ऑन द डेटा. क्वेरीज मैनिपुलेट करते हैं डेटा को इन द टेबल. फॉर्म्स का हम यूज करते हैं. ये यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हैं जो फैसिलिटेट करते हैं प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा इन अ टेबल एंड क्वेरीज. तो फॉर्म एक अट्रैक्टिव इंटरफेस होता है जो एक्सेप्ट करता है डेटा फ्रॉम द यूजर एंड फॉरवर्ड करता है उसको टू द कॉरेस्पॉन्डिंग टेबल और क्वेरी.
Then we have reports. Reports are used to display selected data in a printable format, and reports collect करते हैं summarized data को from one or more tables and queries and organize करते हैं उनको in printable form. Now starting MS Access 2016. To start this हम type करेंगे Access 2016 in the search box and click करेंगे on Access 2016 option. The Microsoft Access startup window open up as shown. Now follow the given steps to create a blank database in Access. हम click करेंगे blank desktop database option पे. Type the name for the database in file name text box. हम click करेंगे browse button पे next to the file name text box and choose करेंगे location for the database. Then click on create button. एक blank database create हो जाएगा. Access create करता है databases with empty table named called table. Components of our access window, हमारे पास quick access toolbar होता है, object tabs, we have title bar, we have ribbon, work area, navigation pane, file tab, we have navigation buttons and view buttons. So title bar show करता है name of the displayed database, file tab display करता है backstage view of commands जैसे new and open, quick access toolbar display करता है quick access buttons जैसे save, undo and redo commands, रिबन डिस्प्ले करता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स एंड टैब्स और हर एक टैब ऑफर करता है कुछ शॉर्टकट बटन्स टू कॉमन टास्क्स. देन वी हैव टैब्स जो कंटेन करते हैं बटन्स एंड अदर कंट्रोल्स फॉर वर्किंग विद डेटा. ग्रुप्स जो ऑर्गेनाइज करते हैं कंट्रोल इनटू सेक्शंस विद टैब्स. डायलॉग बॉक्स लॉन्चर ओपन करता है डायलॉग बॉक्स रिलेटेड टू द ग्रुप. ऑब्जेक्ट टैब प्रोवाइड करता है हमें एक्सेस टू ऑल द ओपन डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स जैसे टेबल्स, रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स. नेविगेशन पेन लिस्ट करता है ऑल द अवेलेबल डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स. व्यू बटन्स स्विच करते हैं बिटवीन वेरियस व्यूज ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट. रिकॉर्ड सिलेक्टर डिस्प्ले करता है करंट रिकॉर्ड नंबर एंड नेविगेट करता है अदर रिकॉर्ड्स. स्टेटस बार डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट ऑब्जेक्ट और व्यू. नाउ फील्ड डेटा टाइप्स एंड फील्ड प्रॉपर्टीज. यू नो दैट जो डेटाबेस टेबल है वो कंसिस्ट करता है नंबर ऑफ फील्ड्स और हर एक फील्ड के पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो डिफाइन करती हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर. मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है फील्ड का वो है उसका डेटा टाइप. अब फील्ड का डेटा टाइप जो है वो डिटरमाइन करता है व्हाट काइंड ऑफ डेटा इट कैन स्टोर. फॉर एग्जांपल फील्ड whose डेटा टाइप इज टेक्स्ट वो स्टोर कर सकता है डेटा जो कंसिस्ट करता है या तो टेक्स्ट या फिर न्यूमेरिकल कैरेक्टर. बट अ फील्ड जिसका डेटा टाइप है नंबर वो सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा ही स्टोर करेगा. So, the following table explains various data types that are commonly assigned to the fields in a table. पहला आता है हमारे पास short text. ये जनरल पर्पस फील्ड होती है जो कंटेन करता है कोई भी डेटा. इट हैज अ लिमिट ऑफ 255 कैरेक्टर्स एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर न्यूमेरिक कैलकुलेशंस. हमें यूज करना है दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिक एंट्रीज that will not have calculations performed on them such as telephone numbers and zip codes. लॉन्ग टेक्स्ट होता है इसमें लिमिट होती है 63,999 कैरेक्टर्स एंड इसको हम यूज करते हैं फॉर डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव फील्ड्स. देन नंबर ये टाइप स्टोर करता है न्यूमेरिक डेटा दैट यू कैन यूज इन कैलकुलेशंस एंड ये ऑल्सो होल्ड करता है सिंबल्स जैसे डेसिमल पॉइंट्स एंड कॉमास. डेट एंड टाइम दिस टाइप ऑफ ओनली स्टोर्स न्यूमेरिकल नंबर्स रिप्रेजेंटिंग वैलिड डेट्स एंड टाइम्स. करेंसी स्टोर करता है डेटा दैट यू कैन यूज इन कैलकुलेशंस. ऑटो नंबर स्टोर करता है सीक्वेंशियल नंबर ऑफ ईच रिकॉर्ड. यस नो यहाँ पे वैल्यू 1 रिप्रेजेंट करता है यस एंड वैल्यू 0 रिप्रेजेंट करता है नो बट द फील्ड कैन बी फॉर्मेटेड टू डिस्प्ले वैल्यूज एज ट्रू फॉल्स और यस नो. OLE ऑब्जेक्ट स्टोर करता है ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड इन अदर एप्लीकेशन जैसे वर्ड, एक्सेल दैट यू कैन लिंक टू और फिक्स इन एक्सेस टेबल. हाइपरलिंक्स होते हैं जिन यू कैन लिंक टू वेबसाइट, ईमेल एड्रेसेस, फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर, फाइल्स ऑन लाइन या फिर virtually on any other location. Calculated आप यूज कर सकते हो इसका to create calculated fields directly in a table. In the earlier versions, you could create calculated fields only in queries. Now lookup wizard depending on your usage ये जो type है ये create करता है एक lookup list from the data that you specify for a lookup list from the values in another table. ये also use किया जाता है to set up multi-valued list. After you have decided on your data type of the table, आप set कर सकते हो field properties. Field properties let us have more control on data that can be entered in a particular field. Let us learn about some common properties you can set for various types of field in MS Access 2016. पहला होता है हमारे पास फील्ड साइज. ये प्रॉपर्टी डिटरमाइन करती है कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स हमारे फील्ड के अंदर एंटर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स ऐड करा सकते हैं. हाउएवर हम चेंज कर सकते हैं फील्ड का साइज प्रॉपर्टी टू मेक श्योर दैट नोबडी कैन एंटर मोर देन 50 कैरेक्टर्स इन अ स्पेसिफिक टेक्स्ट फील्ड या फिर टेबल.
फिर आता है कैप्शन, जो कि एक टाइटल है गिवन टू अ फील्ड नेम। बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हम डिस्प्ले कर सकते हैं अनदर नेम फॉर द फील्ड टू मेक द फील्ड नेम मोर रेलेवेंट। डिफॉल्ट वैल्यू, ये वो वैल्यू होती है जो ऑटोमेटिकली इंसर्ट होती है इनटू द फील्ड while entering a record। फॉर एग्जाम्पल जो फंक्शन डेट है 0 वो इंसर्ट होगी टूडेज डेट में एंड नंबर नाउ 0 विल इंसर्ट द करंट डेट एंड टाइम इन द डेट टाइम डेटा टाइप फील्ड। रिक्वायर्ड, हम यूज कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी का टू स्पेसिफाई whether a value is required in a field or not, at this property is set to yes while entering the data in a record we must enter values in this field। फिर आता है हमारे पास वैलिडेशन रूल। ये रूल हमारी हेल्प करता है टू क्रिएट एन एक्सप्रेशन दैट इज टेस्टेड अगेंस्ट द डेटा एंटर्ड। नाउ फॉर एग्जांपल हम एंटर कर सकते हैं वैलिडेशन रूल को फॉर अ न्यूमेरिक फील्ड एज greater than 0 to disallow the entry of 0 or negative numbers। The validation rule defined as greater than equals to date for datetime field will allow only the current date or the next date entries। वैलिडेशन टेक्स्ट, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हम डिफाइन कर सकते हैं एरर मैसेज जो अपीयर होगा ऑन द स्क्रीन व्हेन द वैलिडेशन रूल इज नॉट मेट व्हाइल एंटरिंग द डेटा। फॉर एग्जांपल अगर जो वैलिडेशन रूल है वो ग्रेटर देन है 0 से फॉर अ न्यूमेरिक फील्ड तो वैलिडेशन टेक्स्ट विल बी एंटर्ड एज इनकरेक्ट एंट्री सो दैट व्हेनेवर 0 और नेगेटिव वैल्यूज आर एंटर्ड इन द फील्ड मैसेज इनकरेक्ट एंट्री इज डिस्प्लेड। डेटाबेस व्यूज इन एमएस एक्सेस, तो एमएस एक्सेस अलाउ करता है हमें टू क्रिएट एंड एडिट टेबल्स एंड अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स इन टू मेन व्यूज। दीज आर कॉल्ड डिजाइन व्यू एंड डेटा शीट व्यू। तो डिजाइन व्यू की अगर हम बात करें, इसके अंदर जो टेबल होता है हम एंटर कर सकते हैं फील्ड नेम्स, डेटा टाइप्स एंड डिस्क्रिप्शन। यू कैन ऑल्सो सेट द फील्ड प्रॉपर्टीज। डिजाइन व्यू विंडो इज डिवाइडेड इनटू टू पेन। पहला होता है फील्ड ग्रिड पेन, यहाँ पे इसको हम यूज करते हैं एंट्री कराने के लिए फील्ड नेम की एंड डेटा टाइप की। We can also give an optional description about each field in this pane। Field property pane जो होता है यहाँ पे हम इसको यूज करते हैं to set properties for the field in the table। फिर आता है हमारे पास डेटा शीट व्यू एंड व्हेन यू डबल क्लिक ऑन द टेबल नेम इन द डेटा शीट व्यू तो टेबल ओपन हो जाता है इन अ डेटा शीट व्यू। स्विचिंग बिटवीन व्यूज, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस अलाउ करता है हमें कि हम स्विच कर सकते हैं फ्रॉम वन व्यू टू अनदर बाय फॉलोइंग ईदर ऑफ द टू ऑप्शंस। हमें क्लिक करना है व्यू ऑप्शन पे इन द व्यू ग्रुप ऑन द होम टैब टू चेंज द डिजायर्ड व्यू, या फिर हम क्लिक कर सकते हैं डिजाइन व्यू पे और डेटा शीट व्यू बटन पे एट द राइट कॉर्नर ऑफ द स्टेटस बार। क्रिएटिंग अ टेबल इन डिजाइन व्यू, टू क्रिएट अ टेबल इन डिजाइन व्यू फॉलो द गिवन स्टेप्स। इन डेटाबेस विंडो हम क्लिक करेंगे क्रिएट टैब पे एंड सेलेक्ट करेंगे टेबल ऑप्शन इन द टेबल्स ग्रुप। न्यू टेबल विल बी क्रिएटेड इन द डेटाबेस। हम क्लिक करेंगे ऑन व्यू बटन इन द व्यू ग्रुप एंड चूज करेंगे डिजाइन व्यू फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। नाउ द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। हम डिफाइन करेंगे टेबल नेम एंड क्लिक करेंगे ऑन ओके बटन। एक्सेस ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा प्राइमरी की एंड असाइन इट इज अ फील्ड नेम आईडी एंड डेटा टाइप ऑटो नंबर्स। फिर एंटर करना है नेम ऑफ अदर फील्ड्स इन द फील्ड नेम कॉलम। प्रेस द टैब की टू मूव टू द डेटा टाइप कॉलम। बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट है वो अपीयर होगा इन द डेटा टाइप कॉलम। क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन एरो दैट अपीयर्स व्हेन वी क्लिक इन द डेटा टाइप फील्ड। सेलेक्ट करना है हमें डिजायर्ड डेटा टाइप फ्रॉम द डिस्प्लेड लिस्ट। नाउ हम प्रेस करेंगे टैब की को टू मूव टू द डिस्क्रिप्शन कॉलम। इन दिस कॉलम वी कैन गिव एनी कमेंट रिलेटेड टू द फील्ड। दिस इज द ऑप्शनल स्टेप। हम प्रेस करेंगे टैब की को अगेन एंड द कर्सर विल मूव टू द फील्ड नेम कॉलम इन द नेक्स्ट रो। रिपीट करेंगे हम प्रोसेस until you create all the required fields of the table and set their properties। Now we have setting a primary key। Primary key एक की होती है जो differentiate करती है records in a file and data stored in a key field contain करता है data that is unique to a specific record। एक student का record for example यूज करेगा रोल नंबर को एज अ की फील्ड बिकॉज यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है हर एक स्टूडेंट को। इन ईच न्यू टेबल आप क्रिएट करते हो उसमें यू विल सेट वन फील्ड एज प्राइमरी की एंड एक्सेस यूज करेगा इस की को टू रिलेट इट टू दिस टेबल रिकॉर्ड टू दोज ऑफ अदर टेबल्स। टू सेट अ प्राइमरी की फॉलो द गिवन स्टेप्स। इन द डिजाइन व्यू आप क्लिक करोगे फील्ड पे यू वांट टू सेट एज प्राइमरी की। सिलेक्टेड फील्ड विल बी हाईलाइटेड। देन क्लिक ऑन प्राइमरी की बटन present in the tools group on the design tab। फिर जो field है it will be set as primary key indicated by a small key in the field sector column।
प्राइमरी की एक ऑन ऑफ टूगल होती है, टू रिमूव इट आपको सेलेक्ट करना है प्राइमरी की फील्ड को एंड देन क्लिक ऑन प्राइमरी की बटन अगेन। नाउ सेटिंग फील्ड साइज प्रॉपर्टीज। तो द डिफॉल्ट फील्ड साइज जो होता है फील्ड का वो डेटा टाइप होता है ऑफ टेक्स्ट इज 255 कैरेक्टर्स एंड आप चेंज कर सकते हो साइज रेंज ऑफ 0 to 255 कैरेक्टर्स। द सेट टू सेट द फील्ड साइज फॉलो द गिवन स्टेप्स। आप क्लिक करोगे फील्ड पे जिसका साइज आपको चेंज करना है, देन क्लिक ऑन जनरल टैब इन द फील्ड प्रॉपर्टीज एरिया, एंटर द न्यू फील्ड साइज इन द फील्ड साइज टेक्स्ट बॉक्स। सेटिंग अ डिफॉल्ट वैल्यू। तो अगर आपको स्पीड अप करना है डेटा एंट्री फॉर फील्ड्स दैट यूजुअली कंटेन द सेम वैल्यू, मेकिंग दैट वैल्यू एज द डिफॉल्ट, तो आप क्लिक करोगे फील्ड पे जिसकी आपको डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है, देन क्लिक ऑन जनरल टैब इन द फील्ड प्रॉपर्टीज एरिया, देन क्लिक ऑन डिफॉल्ट वैल्यू रो। उसके बाद आप टाइप करोगे डिफॉल्ट वैल्यू, एक्सेस ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा कोटेशन मार्क्स अराउंड व्हाट यू टाइप्ड एंड इफ द डेटा टाइप इज टेक्स्ट। नाउ व्हेन यू डिस्प्ले द टेबल्स डेटा, शेयर द डिफॉल्ट वैल्यू appears in the new records. Setting the fields format, तो आप चेंज कर सकते हो अपने फील्ड का फॉर्मेट टू अपडेट इट्स अपीयरेंस इन डेटा शीट फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। एंड आपको क्लिक करना है फील्ड पे जिसका फॉर्मेट चेंज करना है, देन क्लिक ऑन जनरल टैब, क्लिक इन द फॉर्मेट रो, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा, वहां से आप क्लिक करोगे ड्रॉप डाउन एरो पे टू चूज द फॉर्मेट दैट यू वांट एंड फॉर अ नंबर और ऑटो नंबर फील्ड द चॉइस रिप्रेजेंट डिफरेंट नंबर टाइप्स जैसे जनरल, करेंसी एंड परसेंटेज। फॉर डेट एंड टाइम आप चूज कर सकते हो डेट टाइम फॉर्मेट, फॉर येस नो आप चूज कर सकते हो yes or no वाला expressing option, and certain field types such as text, memo and hyperlink have no preset formats. Creating a validation rule, तो validation rule को हम use करते हैं to force a field entry to meet a logical test of its validity. बाय वैलिडेशन रूल आप इंश्योर कर सकते हो कि करेक्ट वैल्यू एंटर हुई है फील्ड में एंड इफ द यूजर मेक्स एनी इनकरेक्ट एंट्री तो एक एरर अलर्ट आ जाएगा जो स्टॉप कर देगा यूजर को और एक वार्निंग देगा जस्ट टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। नाउ टू क्रिएट अ वैलिडेशन रूल फॉलो द गिवन स्टेप्स। आप क्लिक करोगे फील्ड पे that you want to create a validation rule, then click on general tab in the field properties area, click on the validation rule row and type the validation rule in the row. फिर आप क्लिक करोगे validation text row पे and type करोगे text for the error message. Then here we have validate the rule that fees should be less than 2500. In this example हम enter करेंगे 3000 although we have validate less than 2500. Now in the data sheet view if you enter wrong entry तो एक आपके पास एक error message appear होगा containing the text that you specified validation text row and click on OK and retype the entry. Saving and closing the table. So table structure is now complete and जो next step है to save the table in a database, आप क्या करोगे एक name provide करोगे अपने table को before saving it and once you have saved the table आप कंटिन्यू कर सकते हो वर्किंग इन द टेबल विंडो और क्लोज द विंडो। तो आप क्लिक करोगे सेव बटन पे ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, एक सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, फिर आप टाइप करोगे नेम स्टूडेंट्स डिटेल इन द टेबल नेम बॉक्स एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन। तो एक्सेस सेव करेगा आपका टेबल एंड द टेबल नेम अपीयर्स इन द ऑब्जेक्ट टैब एंड नेविगेशन पेन। आप क्लिक कर सकते हो क्लोज बटन पे टू क्लोज द टेबल। Adding records or data in a table. So after creating the table in design view आप add कर सकते हो records to it in the data sheet view and to enter records आप क्या करोगे ओपन करोगे टेबल को डेटा शीट व्यू में, डबल क्लिक करोगे टेबल पे इन द नेविगेशन पेन टू ओपन द डेटा शीट व्यू। फिर आप क्लिक करोगे न्यू ऑप्शन पे इन द रिकॉर्ड्स ग्रुप ऑन द होम टैब, एक न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा आपके टेबल में एंड टाइप करनी है आपको वैल्यूज फॉर वेरियस फील्ड्स इन अ रिकॉर्ड। व्हेन वी स्टार्ट एंटरिंग डेटा एक न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द टेबल। Editing records in a table. After entering data, sometimes हमें requirement होती है to make changes in database and that can be done in various ways. So to edit a record directly, हम scroll करेंगे through the records and use करेंगे record navigation button को to find the record to edit. डबल क्लिक करेंगे सेल पे जिसे हमें एडिट करना है, देन टाइप द इंफॉर्मेशन इनटू द फील्ड्स, एक पेंसिल आइकन अपीयर हो जाएगा जो इंडिकेट करेगा एडिट मोड, वहां से आप क्लिक कर सकते हो आउटसाइड द रिकॉर्ड टू अप्लाई द चेंजेस। Deleting the records in a table. So to delete the records आप select करोगे अपने record को by clicking the gray border known as record selector on the left side of the record. फिर आप select करोगे home tab and locate करोगे records group. Now click the delete command button. Record will be permanently deleted. Sorting records in a table. आप sort कर सकते हो alphabetically या फिर arrange कर सकते हो numbers को ascending descending order में by following certain steps.
तो आप सिलेक्ट करोगे अपनी फील्ड को जिसे आपको सॉर्ट करना है, फिर आप क्लिक करोगे ड्रॉप डाउन एरो पे नेक्स्ट टू द राइट ऑफ द फील्ड्स, देन क्लिक करोगे सॉर्टिंग ऑप्शन पे डिस्प्लेस फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, ऑब्जर्व द चेंजेस इन द डेटाबेस, या फिर आप क्लिक कर सकते हो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑप्शन पे इन द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप अंडर द होम टैब। Let's revise the chapter. Microsoft Access is powerful database software. A database is a collection of data organized in a manner जो allow करता है access, retrieval and use of that data. DBMS एक set of program है जो allow करता है हमें to create a database. Database in Access are composed of four main objects: tables, queries, forms and reports. टेबल डिफाइन करता है फील्ड एंड स्पेसिफाई करता है हाउ द डेटा शुड बी एंटर्ड। फील्ड डेटा टाइप डिटरमाइन करता है कि व्हाट काइंड ऑफ डेटा इट कैन स्टोर। फील्ड प्रॉपर्टी हमारी हेल्प करती है टू हैव मोर कंट्रोल ऑन डेटा दैट कैन बी एंटर्ड इन अ पर्टिकुलर फील्ड। एंड इन द डिजाइन व्यू ऑफ टेबल हम एंटर करते हैं फील्ड नेम, देयर डेटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन। हम यूज करते हैं डेटा शीट व्यू को टू एंटर डेटा इन अ टेबल एंड वी कैन ऐड, एडिट और डिलीट रिकॉर्ड्स इन अ डेटा शीट व्यू ऑफ द टेबल। So students, this was your complete chapter.